last line, mental health is not just the absence of mental illness. ये बहुत critical, very important, this last line. Mental health is not just the absence of mental illness. Unfortunately, India में everybody, educated, uneducated, everybody understands mental health from the perspective of mental illness. अगर किसी को mental illness है, अगर जिसे हम कहते हैं कोई पागल है, उसे mental health की जरूरत है. But that is not true. Mental health is not the absence of mental illness. मतलब if you are able to cope with the stress, if you are able to have a productive life, if you are able to contribute fruitfully to the society, then you are mentally healthy. Again, a very simple definition, very easy to understand. Next one, mental illness. इसके बाद let us focus a little bit on mental illness. अब थोड़ी सी illness की बात कर लेते हैं क्योंकि mental illness is a part of the mental health. Mental illness is described as a spectrum of cognitive, emotional, and behavioral conditions that interfere with the social, emotional well-being and the lives of productivity of people. Having a mental illness can seriously impair, either temporarily or permanently, the mental functioning of a person. Other terms include mental health problem, illness, disorder, and dysfunction. मतलब मेंटल इलनेस का मतलब क्या है? अगर आप इमोशनली, कॉग्निटिवली, बिहेवियरली आप सक्षम नहीं है वो काम करने में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगी एंड सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगी, which is interfering with your social and emotional well-being, then it is a mental illness. And mental illness can be temporary. Please understand that mental illness can be temporary or can permanently impair a person's functioning. Can be temporarily or permanently impair. और कई अलग टर्म से, लेमैन टर्म से हम क्या कह देते हैं? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, हम कहते हैं मेंटल इलनेस, हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर, हम कहते हैं मेंटल डिसफंक्शन. तो ये भी कुछ चीजें हैं. अगेन वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन, अगर हम मेंटल हेल्थ मॉडल की बात करें तो हम देखते हैं कि थ्री कंपोनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो अगेन एंड अगेन वी आर सेइंग दैट इमोशनल वेलबीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, social well-being is very important, psychological well-being is very important. All the three, emotional, social, psychological, कुछ हद तक हमारे इसमें biological well-being भी है, but that comes more under physical health. Emotional well-being, social well-being and psychological. तो देखें जरा what does it mean? Emotional well-being का मतलब है having high level of positive emotion, whereas social and psychological well-being are defined as the presence of psychological and social skills and abilities that contribute to optimal functioning of daily life. मगर अगर आपके पास साइको सोशल स्किल्स है, नेक्स्ट वन प्लीज, अगर आपके पास साइको सोशल स्किल्स हैं जो कि हम कभी कभी कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स, if you have those psychosocial skills, then you have the social skills and you have the ability to contribute to the functioning of daily life. तो अगर आप मेंटली इमोशनली स्ट्रांग हैं, अगर आप सोशली स्ट्रांग हैं और आपके इमोशंस अगर पॉजिटिव हैं, देन यू कैन ऑलवेज अचीव ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ डेली लाइफ. ऑप्टिमल मतलब एक लेवल जहां पर आप किसी चीज को आप उसके ऊपर चले जाए तो शायद ज्यादा है, उसके ऑप्टिमल के नीचे चले जाए तो शायद कम है. तो ऑप्टिमल इज लाइक अ मीन, जैसे स्टैटिस्टिक्स में मीन कहते हैं ना, मीन, मोड, मीडियन, मीन फंक्शनिंग ऑफ डेली लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आप लोग सब पीजी स्टूडेंट्स हैं, एमफिल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ी हायर लर्निंग की जरूरत है. या आप अंडर ग्रेजुएट नहीं है मगर आप हायर लर्नर्स हैं, और आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल ऑल बी फेसिंग द जॉब मार्केट सोन. और जॉब मार्केट में ये बहुत
इम्पोर्टेंट होगा कि आप कितना हद तक जानते हैं. एंड टुडे यू नो लॉ इज सच अ क्रिटिकल सब्जेक्ट, लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो मेंटल हेल्थ एक्ट है इंडिया में, मेंटल हेल्थ एक्ट था 1987 में. तो ये आपको जानने की जरूरत है थोड़ा हिस्ट्री. मेंटल हेल्थ एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय द पार्लियामेंट इन 1987. इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 90 अप्रैल 1993. काफी साल लग गए उसको एक्ट उसको पास होने में. एंड इट रिप्लेस्ड, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लॉ नहीं था, हमारे पास इंडियन लूनेसी एक्ट था जो 1912 ब्रिटिश के जमाने में था, विच वाज रिप्लेस्ड बाय इंडियन लुनेटिक असाइलम एक्ट जो कि 1858 में था. तो ये तो थोड़ा हिस्ट्री ऑफ द एक्ट, क्योंकि कोई भी हेल्थ या कोई भी सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास लॉज हैं विच आर फैसिलिटेटिंग. तो ये एक लॉ है जो कि मेंटल हेल्थ लॉ था, मगर इसमें कुछ कमियां देखी गई. और कमियां देखने के बाद भारत सरकार ने एक और, नेक्स्ट प्लीज, एक और लॉ को, नेक्स्ट प्लीज, हाँ एक और, सॉरी सॉरी इससे पहले वाला, सॉरी आई एम सो सॉरी. हाँ मेंटल है, ये डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, an act to consolidate and amend the law related to treatment and care of mentally ill person to make better provision with respect to their property and affairs and for matters connected with their incidental hitherto. मतलब ये एक्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि ताकि उन जो लोग मेंटली इल हैं उनको ट्रीटमेंट मिल सके, उनको केयर मिल सके, और अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो उनको कोई डिप्राइव ना कर सके, उनके ह्यूमन राइट्स सब इंटैक्ट रहें. तो इसके उनके प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया था. मगर दिस देयर वर सम कमियां इन द लॉ. उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. उसके लिए फिर हमने, भारत सरकार ने एक दूसरा एक्ट बनाया जो कि अभी भी at present it is very much a part of the system. It's called Mental Health Care Act 2017. In India, the Mental Health Care Act 2017 was passed in April and came into force from 2018. तो अभी ये एक्ट लागू है. This act, most important fact, क्यों हमें वो लॉ चेंज करना पड़ा? बिकॉज ये जो एक्ट है, लॉ है, एक्ट है, इसको हम डिक्रिमिनलाइज करते हैं. पहले क्या था, उस पहले एक्ट में था कि किसी ने अटेम्प्ट किया सुसाइड के लिए या किसी ने अबेट किया उसको सुसाइड के लिए तो दोनों को जेल में डाल दिया जाता था. ये नहीं देखा जाता था कि आदमी ने या औरत ने या बंदे ने क्यों सुसाइड किया, व्हाट इज द रीजन फॉर कमिटिंग दिस सुसाइड. मेंटल इलनेस है तभी उसने किया, तो ये सब पूछे बगैर ही उसको डाल दिया जाता था. तो ये जो लॉ है इसको, ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि ये डिक्रिमिनलाइजेस अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. तो ये डिक्रिमिनलाइज करता है कि भाई आपने अगर सुसाइड अटेम्प्ट की तो यू विल नॉट बी पुट इन जेल बट यू विल बी सबमिटेड फॉर मेडिकल हेल्थ केयर. तो आपको ये पनिशेबल बाय लॉ नहीं है. जैसे आर्टिकल 377 था ना, गेस लेस्बियन, जैसे उनको पहले ही पकड़ो और जेल में डाल दो, तो उनके पास कोई लॉ नहीं था टू प्रोटेक्ट देम. अभी तो लॉ है दैट यू कांट थ्रो देम इन द जेल. तो ये इसी तरह से ये एक्ट है. नाउ प्लीज रिमेंबर, आप लोग पीजी स्टूडेंट्स हैं, एमफिल स्टूडेंट्स हैं, कि मेंटल हेल्थ एक्ट लागू है. इट इज इन 2018 लागू हो गया. एंड लास्ट लाइन प्लीज रिमेंबर, दिस एक्ट सुपरसीड्स द एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ एक्ट. ये एक्ट जो है, अब आप लोग अभी लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको मालूम होगा, हो जाएगा कि ये जो लॉ है इट सुपरसीड्स द अर्लियर लॉ. तो ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. ठीक है, ये तो लॉ की बात हो गई. नाउ लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी अगर हम बर्डन ऑफ द डिजीज करें, मेंटल हेल्थ क्या जरूरत है मेंटल हेल्थ की, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. हमारे यहाँ सुसाइड कितने कम केसेस होते हैं, हमारे यहाँ मदर चाइल्ड हेल्थ का तो बहुत वो है, हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी तो बहुत है, हमारे यहाँ प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ बहुत है. हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं. आप किसी पॉलिसी मेकर एक्सपर्ट से बात करें तो वो कहेंगे इसकी क्या जरूरत है. बट दैट इज नॉट ट्रू. हम रिसर्चर्स हैं, आप लोग रिसर्चर्स हैं, आप लोग एविडेंस बेस्ड डेटा जरूर देखते हैं.
आपको एविडेंस बेस्ड डेटा चाहिए। क्या हमारे पास एविडेंस है? यस, हमारे पास एविडेंस है, और एविडेंस कहाँ से है? WHO से, विच इज can't be refuted. 7.5% Indians suffer from some mental disorder. कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर 7.5 इंडियन पॉपुलेशन में है, एडल्ट पॉपुलेशन में। एंड WHO ऑल्सो प्रिडिक्ट्स कि ये जो फिगर है रफली 20% हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2021, क्योंकि अब कोविड भी आ गया है। बाय 2021 20% ऑफ द इंडियन एडल्ट will suffer from some kind of mental illness, which is a huge number. 20% of 1.3 crore is a very large number. 130, sorry. Further, 56 million Indians suffer from depression. अब डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बात नहीं करते, हम उसको डिजीज भी नहीं समझते, हम ये भी नहीं समझते कि वी नीड टू टेक मेडिकल हेल्प फॉर दैट। हम कहते हैं अरे डिप्रेशन सबको हो जाता है। तो ये 56 मिलियन इंडियंस, 56 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। 56 मिलियन सफर फ्रॉम डिप्रेशन, एंड अनदर 56 38 suffer from anxiety disorder। तो डिप्रेशन, एंजाइटी डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम तवज्जो नहीं देते, वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी डोंट थिंक इट इज अ सीरियस इशू, वी ब्रश इट अंडर द कार्पेट। नाउ दिस इज एविडेंस फ्रॉम WHO। बर्डन क्या है? बर्डन है 7.5, इट विल गो अप टू 20%, 56 million and 38 million, which is a very high number. Next, please. आप रिसर्चर्स हैं तो यू हैव टू कीप ऑल दिस माइंड। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ की बात करने के साथ साथ हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन है। क्या हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं? क्या हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं? क्या हमारे पास मेंटल हेल्थ केयर नर्सेज हैं? क्या हमारे पास सोशल वर्कर्स हैं? WHO ने कहा है कि पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख पॉपुलेशन में इंडिया में अभी 0.3 साइकियाट्रिस्ट है। 1 लाख में 0.3। और WHO कहती है कि 1 लाख में कम से कम 3 साइकाट्रिस्ट होने चाहिए, जो भी, और मोर देन दैट मिनिमम 3 होना चाहिए, जो कि बहुत कम है। मेंटल हेल्थ नर्सेस WHO कहती है कि 0.12, मतलब नॉट इवन 1, 0.12 मेंटल हेल्थ नर्सेज है। WHO कहती है कि मोर देन 3 होना चाहिए पर 1 लाख पॉपुलेशन। साइकोलॉजिस्ट कितने हैं? 0.07, बहुत कम, उससे भी कम। सोशल वर्कर्स कितने हैं? 0.07, बहुत कम। तो ये एक बहुत अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल ऑफ यू टू जंप इनटू दिस फील्ड एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस फील्ड। अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर लीजिए। यू कैन बी काउंसलर्स, यू कैन बी सोशल वर्कर, you can be psychologist, so you grab this opportunity। ये बहुत ज्यादा कमी है। तो this is the mental health workforce। next one, अगर हम बर्डन की बात करें, फिर हम देखते हैं कि इंडिया ऑल्सो अकाउंट फॉर 36.6% ऑफ सुसाइड ग्लोबली। ग्लोबली जितने भी सुसाइड्स होते हैं उसका ऑलमोस्ट 37% इंडिया में है, विच इज अ वेरी हाई नंबर। India में suicide has surpassed maternal mortality as the number one cause of death for teenage girls aged 15 to 19। 15 to 19 ईयर एज ग्रुप में सुसाइड इंडिया में इतना हाई है कि वो मेटर्नल मोर्टेलिटी से भी ज्यादा हो गया है। 9.8, 10 million teenagers in the age group of 13 to 17 suffer from depression and other mental health disorders, and they need immediate urgent intervention, active intervention की जरूरत है। ये किसने कहा है? निमहंस बैंगलोर जैसे इन्होंने स्टडी की थी 2015-2016 में कि 10 मिलियन टीनेजर्स हैं। और ये टीनेजर्स कौन है? 13 टू 17। ये टीनेजर्स कौन है? स्कूल गोइंग। ये टीनेजर्स कौन है? एडोलेसेंट। ये टीनेजर्स कौन है? जिनकी शादी भी करा दी गई है। तो ये दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन
एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और उनको मेंटल हेल्थ सुविधा की जरूरत है, सर्विसेज की जरूरत है, बट वी हैव नो साइकोलॉजिस्ट, नो सोशल वर्कर्स, नो काउंसलर्स। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये डिजीज बर्डन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वी कम टू कोविड। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी बात सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंस। अब सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी वर्ड है, can make one feel isolated, lonely, and can increase stress and anxiety. ऑलरेडी हमको ये वर्ड जो है सोशल डिस्टेंसिंग से हम ऑलरेडी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं हम तो घर में कैदी बन गए, सब लोग कह रहे हैं हम तो बहुत लोनली बन गए, हम तो किसी से हाथ भी नहीं मिला सकते। हाँ, इससे क्या है, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन दिस सोसाइटी। मतलब कोविड कब खत्म होगा, कब स्कूल्स खुलेंगे, कब कॉलेजेस खुलेंगे, कब जॉब्स मिलेंगी, ऑल दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। अगर आप यंग हैं तो आपको जॉब्स की चिंता है, कॉलेज की चिंता है। अगर आप सीनियर्स हैं तो आपको सोशल गेट टुगेदर्स की चिंता है। अगर आप मैरिजेबल एज के हैं तो आपको चिंता है कि कब फैमिली स्टार्ट होगी। तो दिस सोशल डिस्टेंसिंग इटसेल्फ इज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल बैरियर, है ग्रेट सेटबैक है। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम सोशल डिस्टेंस जैसे में स्ट्रेस कह रहे हैं, तो इन द कोविड सिचुएशन क्या है, एक बहुत ज्यादा फियर है, अनसर्टेनिटी है, एंगर है, बहुत सैडनेस है, बहुत ज्यादा वरी है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा नमनेस है कि भाई अब इसके बारे में हम कोविड की बात नहीं करना चाहते, बहुत नम हो गया हूं। तो ये जो फीलिंग है, दिस इज this all contributes to stress। फियर है, एंगर है, सैडनेस है, वरी है, फ्रस्ट्रेशन है। इसके साथ साथ चेंजेस इन दी एपेटाइट, एनर्जी, डिजायर एंड इंटरेस्ट। एपेटाइट में भी अब एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा, कई लोग कह रहे हैं एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा तो भूख नहीं लग रही, खाने को दिल नहीं कर रहा, आइसोलेटेड है, एनर्जी नहीं है। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड मेकिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द टाइम यंग पीपल के लिए टू मेक करियर ऑप्शन, करियर अपॉर्चुनिटीज। ये नहीं हो पा रहा स्टूडेंट्स के लिए, 10th का बोर्ड होगा या नहीं, 11th का बोर्ड होगा या नहीं, कैसे बोर्ड में अपेयर करूंगा, आफ्टर द बोर्ड क्या होगा। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड डिफिकल्टी, लॉट्स ऑफ पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड नाइटमेयर। फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिएक्शन जैसे हेड एक, बॉडी एक, स्टमक प्रॉब्लम, स्किन रैशेस, ये तो है ही। क्रॉनिक प्रॉब्लम जिनको था, जैसे कि HIV एड्स है, जिनको क्रॉनिक इलनेस है, जैसे शुगर है, डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे क्रॉनिक मेंटल, इन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज देयर इज नोवेयर टू गो। दे कांट गो टू द सर्विसेज, सर्विसेज आर ऑल क्लोज। अब जो लोग HIV में थे, जिनको एंटीवायरल ड्रग लिया जाता था, वो लोग ग्रेट प्रॉब्लम में है कि उनको ड्रग रोज लेना है, एक दिन भी नहीं मिस हो सकता है। तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि हमको ड्रग्स कैसे मिले, कहाँ मिले, इरेगुलर सप्लाई है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस आर वर्सनिंग। उसके साथ साथ कई जगह पे ये देखा जा रहा है कि टोबैको यूज बढ़ गया है, अल्कोहल यूज बढ़ गया है, सब्सटेंस अब्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने टीवी पे देखा होगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है वैसे इमीडिएटली लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दारू की दुकान, वाइन शॉप, एवरीबडी इज लाइनिंग अप देयर। और लॉकडाउन से पहले भी एवरीबडी लाइंड अप देयर एंड सबने घर में स्टॉक कर लिया। उसी तरह सब्सटेंस अब्यूज का भी है। नेक्स्ट प्लीज। चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है, अब एक नई रियलिटी है, एक नई रियलिटी है। हम एक नई रियलिटी के साथ जी रहे हैं। नई रियलिटी है फियर, अनसर्टेनिटी है, वायरस का पैंडेमिक है, वरी है, स्ट्रेस है। ये एक चैलेंज है, न्यू रियलिटी, पहले कभी नहीं था। 2 साल पहले ये बिल्कुल नहीं था। वी आर फेस्ड विद अनसर्टेनिटी, अननोन। हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या अननोन, क्या अननोन है। अब कोविड पैंडेमिक ने हमारे नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस को भी बदल के रख दिया। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर डेली लाइफ, हमारे मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है। हम मार्केट नहीं जा सकते, सोशल गैदरिंग, हम बाहर घूमने नहीं जा, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकते। ये भी तो देख लीजिए कितना फिजिकल रिलेशन में भी कितना ज्यादा हो गया।
न्यू रियलिटी क्या है? वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम, बहुत ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. लुक एट द माइग्रेंट लेबरर, लुक एट द पीपल हु आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर. कितनी ज्यादा टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, कितनी ज्यादा होम स्कूलिंग की कितनी प्रॉब्लम है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों से पूछ लीजिए आप की क्लासेस हो रही हैं? हाँ जी सर हो रही है, मगर हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम तो क्लास नहीं कर सकते. स्मार्टफोन नहीं है, तो स्कूलिंग की क्या हालत है. आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा. फिजिकल कांटेक्ट नहीं है विद फैमिली मेंबर्स, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है विद फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स नहीं है. इट और इससे बहुत ज्यादा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है. दिस इज द न्यू रियलिटी. नेक्स्ट प्लीज. हमारे मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है? जिनको नॉर्मल लोगों को तो सर्विसेज की जरूरत है ही है, बट हमारे मेंटल हेल्थ स्टेक होल्डर्स क्या कौन है? क्या ये इम्यून है? क्या इनको मेंटल हेल्थ की जरूरत नहीं है? नो, दैट इज नॉट ट्रू. उनको भी मेंटल हेल्थ की बहुत जरूरत है, क्योंकि बर्नआउट हो रहा है. हेल्थ केयर टीम, डॉक्टर्स, नर्सेस, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, एएनएम, इन सब को इतने स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि इनके ड्यूटी आवर्स इतने बढ़ गए और इनका रिस्क की भी रिस्क टेकिंग इतना ज्यादा हो गया. देर ऑल आवर दे ऑल नीड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन. हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, हमारे पुलिस जो हैं, हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं, हमारे जो ग्रोसरी सप्लायर्स हैं, हमारे जो फूड सप्लायर्स हैं, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, इन सबको, एंड अबव ऑल आपने टीवी पे देखा होगा हमारे क्रिमेशन फ्यूनरल वर्कर्स, इनकी आप मेंटल हेल्थ की बात जरा सोच लीजिए. आंख बंद करके जरा सोचिए इन पर क्या असर हो रहा होगा. हाउ मच विल इट बी अफेक्टिंग देयर मेंटल हेल्थ. तो ये हमारे सोशल वर्कर्स हैं. इसके साथ साथ जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो हेल्थ टीम को मैनेज करते हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, इन सब ये सब स्टेक होल्डर्स हैं. इनके लिए भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस उतना ही है जितना हमारे और आपके लिए. नेक्स्ट प्लीज. अब मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम देखते हैं कि व्हाट डू वी नीड. वी नीड साइको सोशल सपोर्ट. हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूएचओ ने एक बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट इंटरवेंशन, MHPSS. अब आप, अगर आप बहुत अपने आप को एडवांस समझते हैं तो समझने लगेंगे, तो यू यूज द वर्ड MHPPS. लोग नहीं समझेंगे बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड दिस. ये बिल्कुल रिसेंट फिनोमिना है. डब्ल्यूएचओ इज सेइंग मेंटल हेल्थ, नॉट ओनली मेंटल हेल्थ बट साइको सोशल सपोर्ट की भी जरूरत है. That is, this kind of intervention is necessary for everyone, for you, for me, for healthcare workers, for frontline workers, everywhere. ये क्या है? बेसिक साइको सोशल स्किल्स हैं जो कि आपको help करेंगे to feel better. Basic psychosocial skills. These skills will help you to look after yourself and to support others. तो ये psychosocial skills हैं जो हम सबको imbibe करना है. We all have to learn. And your class is, अभी जो क्लास हो रहा है, this is a session where we are trying to imbibe both those psychosocial skills. थैंक यू. नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, की चैलेंजेस की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, और स्ट्रेस के साथ साथ मैंने ऑलरेडी इसको फिर मैंने डायग्रामेटिक आपको दिखाने की लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफन विदाउट एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन. लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफन विदाउट. एक आशा वर्कर, क्या आशा वर्कर के पास पीपीई किट है? क्या हमारी आंगनबाड़ी वर्कर के पास पीपीई किट है? क्या उनको डेली पीपीई किट चेंज मिल रहा है? क्या एक जो मिला है उसको धो के पहनो? तो ये एक लॉन्ग वर्किंग आवर्स एक बहुत ज्यादा कम्युनिटी में, वो हम कह रहे हैं आइसोलेटेड रहो, वो उनको तो कम्युनिटी में जाना पड़ रहा है. तो दिस इज अ न्यू की चैलेंज. हैव टू डील विद कोविड-19 रिलेटेड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन. अभी आपने देखा होगा ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, उनके लिए बहुत ज्यादा स्टिग्मा है. सोसाइटी कह रही है आप तो हमेशा
कोविड वर्कर्स के साथ रहते हो, आप तो दूर ही रहो, आप तो सैनिटाइज होके आओ, उनके ऊपर भी ये स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि भाई आप लोग थोड़ा दूर रहो, आप हेल्थ रिलेटेड स्टिग्मा, ये मेंटल हेल्थ कोविड रिलेटेड काम करते हो, आप तो थोड़ा दूर रहो। तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। जैसे जो लोग पहले HIV रिलेटेड काम करते थे उनके साथ भी अरे आप तो गंदे लोगों के साथ, तब तो ये वर्ड यूज होता था गंदे, आप तो गंदे लोगों के साथ काम करते हो, काउंसलर हो, आप थोड़ा सा अब इनके साथ भी ये स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि हमारे वर्कर्स हैं। फियर ऑफ लूजिंग योर फियर ऑफ योर ओन एंड लव्ड वन, हर एक को चिंता है मेरे फादर जो सीनियर सिटीजन है वो सही रहेंगे, मेरी मदर जो सीनियर, मेरा बच्चा जो अभी न्यू बॉर्न है या 8 साल का है, क्या वो ठीक रहेगा, क्या मैं घर में इन्फेक्शन ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा सबके लिए चैलेंज है, सबके लिए फियर है। आर यू कन्फ्रंटेड विथ इलनेस, अगर अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो क्या आप कन्फ्रंटेड, क्या आपके घर में कोई इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है, और हैव यू फेस दिस चैलेंज ऑफ फेसिंग डेथ, किसी का डेथ हुआ है विद कोविड, ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई आपका फैमिली मेंबर है जो कि क्वारंटीन में है, तो क्या इजंट इट अ बिग चैलेंज कि क्वारंटीन में है, आप आप भी डरे हुए हैं। आजकल तो घर में ये देखा जा रहा है कि फादर सन से डरा हुआ है, सन फादर से डरा हुआ है, सब एक कमरे में लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए क्वारंटीन में है। फिर आपने बहुत सुना होगा स्टोरी जो नर्सेस कह रही है बहुत हो गया, अब हम नहीं डील कर सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बर्नआउट बहुत है, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत करनी पड़ा, हमको बहुत मुश्किल हो रहा है। और कभी कभी हम एज केयर गिवर्स, हम कभी कभी फील करते हैं कि नेग्लेक्टेड हैं, हम हेल्पलेस हैं। जिस तरह जैसे कि कम्युनिटी मेंबर जो कि कोविड इन्फेक्टेड हैं या अफेक्टेड हैं, वो भी फील कर रहे हैं नेग्लेक्टेड एंड हेल्पलेस। तो ये एक बहुत ही बड़ा की चैलेंज है, विच इज नॉट रियली ऐसी कोई साइंस नहीं है कि भाई बहुत बढ़िया साइंस है, मैंने कोई ऐसी बात बता दी कि आप रेवलेशन है, नहीं। ये सब जनरल कॉमन नॉलेज है जिसको मैंने चुन चुन के आपके लिए लेके प्रेजेंट किया। दिस इज नथिंग ग्रेट, बट यस, दिस इज फ्रॉम डे टू डे एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस। पीपल जिनको स्ट्रेस होता है उनको अलग अलग वे में इफेक्ट होता है। फिजिकल सिम्टम्स होते हैं हेडेक, मसल पेन, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड ईटिंग। बिहेवियरल सिम्टम्स होता है लो मोटिवेशन टू वर्क, क्लास जाने का दिल नहीं कर रहा, अरे क्या होगा क्लास में जाके। इंक्रीज यूज ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाती है। डिसएंगेजिंग फ्रॉम रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, डिसएंगेज में अरे भगवान से क्या प्रार्थना करना है, छोड़ो यार ये क्या मिला है। इमोशनल आइसोलेटेड, फियर, सैडनेस एंड एंग। अब ये आप देख लीजिए जो काउंसलिंग है, फिजिकल सिम्टम्स के लिए भी काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिहेवियरल सिम्टम्स के लिए तो काउंसलिंग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिकल से इमोशनल सिम्टम्स के लिए भी काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। क्या हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ काउंसलर्स हैं? जरूरी नहीं है कि उसको कोविड काउंसलर होना पड़ेगा, काउंसलर है या नहीं, क्या काउंसलर है, नहीं, मैंने आपको वर्कफोर्स में दिखाया काउंसलर्स नहीं है। तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगेन एंड अगेन grab this opportunity, improve your skills, and you could provide that technical support or assistance. Next please, चैलेंजेस क्या हैं। मैं बहुत बड़ा लंबा स्लाइड है, मैं सब कुछ नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा आप एट लेजर आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिस्क है कि घरों में जेंडर बेस्ड वायलेंस हैज इंक्रीज। पुलिस स्टेशन में लोग कह रहे, एसएचओ कह रहा है कि हमें ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस, बिकॉज हस्बैंड वाइफ फैमिलीज आर स्टक टुगेदर। अब जेंडर बेस्ड वायलेंस का ये मतलब नहीं है कि हस्बैंड वाइफ ही फाइट कर रहे हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस का ये भी मतलब है कि फादर मदर की फाइट हो रही है, मदर फादर सॉरी फादर सन की फाइट हो रही है, मदर डॉटर की फाइट हो रही है, डॉट सिबलिंग्स की फाइट हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है। एंड जस्ट इमेजिन LGBTQI कम्युनिटी के लिए क्या है, कितना बड़ा चैलेंज है। जस्ट इमेजिन माइनॉरिटी जो LGBTQ और अदर्स हैं उनके लिए, माइग्रेंट्स के लिए क्या प्रॉब्लम है, रेफ्यूजीज के लिए क्या।
ओल्डर एडल्ट्स के लिए क्या प्रॉब्लम है, ऑलरेडी जिनको डिमेंशिया जो भूल जाते हैं उनके लिए कितनी ज्यादा, प्रेग्नेंट वेमेन के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, पीपल चिल्ड्रन एडल्ट्स विद डिफिकल्टी डिसेबिलिटीज उनके लिए कितना प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन एडोलेसेंट केयर गिवर और उनके केयर गिवर्स उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है, जो क्राउडेड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जैसे कि हमारे प्रिजनर्स, जैसे पीपल इन डिटेंशन, जैसे हमारे रेफ्यूजी कैंप, जैसे हमारे इनफॉर्मल सेटलर्स, जैसे हमारे केयर में, जैसे हमारे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में, जैसे इन पेशेंट में, और जैसे हमारे होमलेस हैं, इन लोगों को देखिए कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा कोविड, एंड इनकी मेंटल हेल्थ की आप तुलना भी धारणा भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा होगा। बहुत ही बड़ा वेरी बिग थिंग इज पीपल लिविंग अलोन, इनके लिए भी बहुत सारे पॉपुलेशन, कई यंग लोग हैं जो कि हम, मैं गुड़गांव में हूँ, यहाँ पर बहुत यंग लोग हैं जो कि जॉब के लिए पीजीज में रहते हैं और उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। दे आर, पहले वो वीकेंड होता था तो घर चले जाते थे, अब लॉकडाउन है तो महीनों से वो घर में नहीं गए। एंड 8-8 10 घंटे, मैंने पीजी से बात की जो कि एमएनसी में काम करते, मल्टीनेशनल का, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ की आप हालत समझ सकते हैं। नो पीयर सपोर्ट, नो काउंसलिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो ऑलरेडी जैसे मैंने कहा क्रॉनिक इलनेस है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जैसे HIV एड्स, इन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा कोविड में बहुत ज्यादा इनके लिए चैलेंजिंग एटमोसफियर है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है मेंटल हेल्थ ऑफ women गर्ल्स अफेक्टेड बाय कोविड, बहुत ही ज्यादा इनकी। अब जस्ट इमेजिन इफ यू आर अ वुमन, इफ यू आर अ गर्ल, एंड इफ आपके घर में कोई एल्डरली है जिनको कोविड हो गया, या कोई ब्रदर है जिनको कोई कोविड हो गया, how much work has it has increased, then there is a risk of violence at home because you're cut off, you're not protected, services नहीं है, आपका social network नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस रिड्यूस एक्सेस टू हेल्थ, आपके पास बहुत कम एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यंग गर्ल्स के लिए, उसके लिए आपके पास एक्सेस नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके पास बहुत कम एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है। मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज बहुत ही कम है। बिकॉज ऑफ कोविड, ग्रेटर इकोनॉमिक डिफिकल्टी, लॉट्स ऑफ, आप देख रहे हैं कितने घरों में जो मेड्स काम करते थे, ऑल आर टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड। कुछ एम्प्लॉयज तो उनको सैलरी देते हैं, ज्यादातर उनको सैलरी भी नहीं देते। तो क्या है, दे आर एंगेजिंग इन हाई रिस्क एक्टिविटी। जस्ट थिंक ऑफ अ सेक्स वर्कर, सेक्स वर्कर कैसे खाएगी इन द लॉकडाउन, उसके पास क्लाइंट कहाँ से होगा। तो ये उनके 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 मेंटल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट के भी बारे में अब कितने टेलीफोन आ रहे हैं, क्योंकि हमने चाइल्ड मैरिज पे बहुत काम किया, कितने टेलीफोन आ रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस हैव इंक्रीज। मदर एंड फादर कह रहे हैं कि 15 साल की लड़की है, स्कूल में भी नहीं जा रही, कुछ नहीं हो रहा, इसकी शादी करा दो, चुपके से शादी करा रहे हैं स्लम्स में। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग, क्योंकि फैमिली में इकोनॉमिक बर्डन बहुत है। एक लड़की चली जाएगी या 2 लड़कियां चली जाएगी तो वो बर्डन रिड्यूस हो गया। और इस टाइम पे शादियों पे कोई खर्चा भी नहीं हो रहा, तो डाउरी भी नहीं मांग रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज, अब देखना 1 साल के बाद कितनी इंक्रीज ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हो गए होंगे। एंड लुक एट दिस गर्ल्स हु आर मैरिड, क्या उनके पास एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं? क्या वो जानती हैं प्रेगनेंसी क्या है? क्या वो जानती हैं कि पीरियड्स को हैंडल कैसे करना है? नो, दे डोंट नो। ये बहुत ही बड़ी चैलेंज है फॉर गर्ल्स एंड विमेन। हमारे जो केयर गिवर्स हैं उनके लिए भी बहुत, आप साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, आपको भी बर्नआउट इशू होगा, डॉक्टर्स को भी होगा। एक तो बहुत चीज है, बड़ी चीज है कि हम इस टाइम पे अपने जो डाइड है, हमारे जो नियर एंड डियर वन जिनकी डेथ हो गई, वी कांट मोर्न देयर डेथ, बिकॉज ये पैंडेमिक में मॉर्निंग
पॉसिबल ही नहीं है। आप अकेले, आप आइसोलेटेड हैं, लॉकडाउन में क्या मॉर्निंग कर सकते हैं? पीपल हु आर अनएबल टू कोप विथ, ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ये फैमिली सपोर्ट, किनशिप सपोर्ट भी नहीं है। अब वो जो डेड बॉडीज हैं, वो डेड बॉडीज भी आपको ऐसे रैप मिल रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू ओपन इट अप। अब तो कई, मेरा एक फ्रेंड है जिसकी मदर की डेथ हो गई। उन्होंने जब बड़े चैलेंजिंग वे में डेड बॉडी, जब थोड़ा जिप खोला, प्लास्टिक कवर खोला, तो देखा ये दूसरा है, that was not the mother, that was somebody else. So they had to again go back to the hospital and claim the dead body. तो ये एक, जस्ट इमेजिन बच्चों का, उनके बच्चों का क्या हाल है, उनके फैमिली मेंबर्स का क्या हाल है, और उनके लिए कितना मुश्किल है। वो लड़का आज, फ्रेंड मेरा कह रहा है, मेरे लिए तो क्लोजर ही नहीं हुआ। हम बॉडी को घर भी नहीं ला सके, हम बॉडी को सीधा शमशान घाट में ले गए, और ओनली 3 or 4 पीपल ही आए, बाकी फ्रेंड्स रिलेटिव कोई आया नहीं। हमने बॉडी के लास्ट राइट्स भी नहीं किए, रिचुअल जैसे हिंदुओं में नहलाते हैं, कपड़े नए पहनाते हैं, ये सब हमने ये सब नहीं किया। हमने जाके बॉडी को डंप कर दिया। वो कह रहा है कि मेरे को, मेरे मदर को मरे हुए 2 महीने हो गए, मगर मेरे लिए आज भी क्लोजर नहीं है। आज भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ये दिखता है कि मैंने मदर के लास्ट राइट्स तो ठीक से किया नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और आपने देखा हो घाट पे बॉडीज, आपने देखा हो सैंड में बॉडीज अपना रहे हैं। क्यों? एक तो फियर है, एक तो दूसरा चीज एक रिचुअल है, पैसा नहीं है। और एक कोविड में इकोनॉमिक बर्डन क्या है, रेमडेसिविर की सब, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, एवरीबडी इज टेकिंग, मेकिंग मनी। ये हमारे इंडियन मेंटालिटी दिखा रहा है कि मतलब व्हाट आर वी, हम तो डेड बॉडी पे भी प्रॉफिट बनाने को तैयार हैं। तो दिस इज इट। और इससे आप इमेजिन करिए हाउ मच इफेक्ट इट इज हैविंग ऑन द मेंटल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट। अब ये जल्दी से मैं करूंगा क्योंकि ये आपके पास होगा तो आप पढ़ लेंगे। फिर मेंटल हेल्थ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हमें अर्ली इंटरवेंशन करने की जरूरत है। हमें अर्ली चाइल्डहुड से ही ये शुरू कर देना चाहिए। बच्चा जब, बच्चा व्हेन ही इज एट होम, तभी उसको एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उसको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्ली लर्निंग होनी चाहिए, और उसको इमोशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जो कि डेवलपमेंटली स्टिमुलेटिंग हो। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन लाइफ स्किल्स प्रोग्राम का जरूर ही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। मैं यूनेस्को में था, कितने साल से हम प्रमोट कर रहे हैं लाइफ स्किल्स एजुकेशन, करिए करिए, मगर अभी भी करिकुलम में नहीं, अभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, अभी भी को करिकुलर। इसको हमें करिकुलम में डालना पड़ेगा और स्कूल्स को टाइम देना पड़ेगा, सिलेबस में डालना पड़ेगा, बिकॉज इट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। बच्चा शुड लर्न डिसीजन मेकिंग, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन। अब 15 to 19 ईयर्स में आपको बताया मैंने, 13 to 17 में इतने सुसाइड क्यों हैं? इतने सुसाइड हैं because of school going children, because of college, 10th and 12th class examination. Suicides are very high in school children, और attempt to suicides are also very high. क्यों? Because हमको life skills नहीं दिखाया, सिखाया गया। They have not learned to cope with the stress and emotion. फिर हमारे लिए कभी भी मेंटल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज नहीं होते, स्कूल में, एनजीओ में, कहीं पर भी। हमारे यहाँ कोई मेंटल हेल्थ क्लब नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा ही नहीं होती। तो अगर हम सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे विमेन का, अगर हम उनको एक्सेस टू एजुकेशन, माइक्रो क्रेडिट, या जो जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनमें जोड़ेंगे तो उनका सोशियो इकोनॉमिक स्तर बढ़ेगा, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। नेक्स्ट प्लीज। सोशल सपोर्ट टू एल्डरली पीपल। अब एल्डरली पीपल जो है, कोविड में कहा कि भाई एल्डरली हैव टू बी वेरी केयरफुल। एल्डरली के लिए सपोर्ट क्या है? वेयर इज द सपोर्ट? घर में फैमिली वाज सपोर्टिंग, अब तो फैमिली सपोर्ट भी बंद हो गई है। तो वेयर इज द कम्युनिटी इनिशिएटिव? कहाँ है एल्डरली सपोर्ट के लिए कम्युनिटी केयर सेंटर? कुछ भी नहीं है। टारगेटेड इंटरवेंशन, अगर हमारे पास क्या, LGBTI कम्युनिटी, इंडिजिनस पीपल, पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट, क्या साइको सोशल
इंटरवेंशन है उनके लिए? नहीं है हमारे पास कोई ऐसा। अब वायलेंस प्रिवेंशन एक्टिविटीज क्या हम कर रहे हैं? वायलेंस प्रिवेंशन क्या? डोमेस्टिक वायलेंस, अल्कोहल अब्यूज, क्या हम इनके लिए एजुकेशन कर रहे हैं ऑन मास स्केल, लार्ज स्केल? नहीं। ये भी एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हमारे पास रूरल डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं? पेपर में है, क्या हो रहा है? क्या हमारे पास पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल प्रोटेक्शन के स्कीम्स हैं? क्या हमारे पास ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ह्यूमन राइट्स एंड एनएचआरसी तो है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो चिट्ठी लिख देती है कि भाई आप बताइए, जवाब दीजिए, इतने डेथ्स क्यों हुए, इतने डेथ्स घाट पे क्यों मिले, बस दैट्स इट। ये है ह्यूमन राइट्स। दैट इज नॉट इट, हमें और भी ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। ओके, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन आपका सेशन है ऑन मेंटल हेल्थ, तो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा, 10 अक्टूबर। आप जरूर याद रखिएगा 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वी शुड ऑल प्लेज अभी से, जो 12 अक्टूबर 2021 में, अभी से प्लान करना शुरू करिए कि आपका डिपार्टमेंट है विच इज वेरी प्रोग्रेसिव, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आप 10 अक्टूबर को अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में करेंगे। उसके लिए आप WHO से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अभी से मदद ले सकते हैं। लास्ट ईयर का जो थीम था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, वो था, मेरे ख्याल में इस थीम को इस साल भी कंटिन्यू करेंगे। अब थीम का, मेंटल हेल्थ डे का थीम ऑब्जेक्टिव क्या है? रेज अवेयरनेस अराउंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, आपको अवेयरनेस करना, मोबिलाइज पर्सन फॉर मेंटल हेल्थ, और स्टेक होल्डर्स जो हमारे एनजीओ है, ये है, उनको हम शोकेस करें कि हमने मेंटल हेल्थ में क्या क्या काम किया। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अपना सपोर्ट भी देता हूँ। लेट अस प्लान कि 10 अक्टूबर 2021 में हम डिपार्टमेंट से मेंटल हेल्थ वीक मनाएंगे in the university and in the colleges. I will get the NGOs and I want your support. आपके डिपार्टमेंट को, प्रोफेसर राजेश को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट अस सेलिब्रेट मेंटल हेल्थ डे। ओके, लास्टली, remember, there is no health without mental health. Remember that there is no health without mental health. थैंक यू वेरी मच। मैंने लगभग 1 घंटा ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, but we will all work together towards improving mental health of the community. I would request if there are any questions, we can deal with the questions. Professor Rajesh, I hand over to you to facilitate the session further. Yeah, thank you, Professor Shankar Chaudhary. There were so many things even new for me, and it was a very learning experience. Even I do not know, you say that 1 घंटा हो गया, मुझे तो लगा अभी 10-15 मिनट ही हुआ है। मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा तो आई थॉट दैट यू वर वेरी राइट। और आई मस्ट एडमिट प्रैक्टिकली कि इवन माई सेल्फ नहीं सोचा कभी कि भाई 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे है, उस दिन मनाए। मे बी कभी याद रहता होगा, बट टुडे आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग। देयर वर सो मेनी थिंग्स, कई सवाल खुद मेरे मन में उठ रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू विश टू ask with Professor Shankar Chaudhary, and it's a very well meticulous presentation on the very very important aspect of mental health। और जिसको इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि वी ऑल रिमेन इन ए डिनायल मोड। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर ये कहूँ मैं, जस्ट आई सी हियर एंड देयर, आई सी माई वाइफ इज नॉट हियर, दिस इज व्हाई आई कुड जस्ट से कि वो कहते हैं कि व्हेन यू आर इन एंजाइटी, आप बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं, वो कई बार कुछ सोचते रहते हैं ज्यादा। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज हैपनिंग कि भाई कुछ रहा सामने खाते, कुछ का मैनिफेस्टेशन कई तरीके से हम करते रहते हैं। लेकिन जो बार बार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो प्रोफेसर शंकर चौधरी ने कहा कि ऑलवेज वी रिमेन इन ए डिनायल मोड, हम किसी न किसी चीज से इफेक्ट होते हैं।
और जो सबसे बड़ी चीज होती है जो प्रोफेसर शंकर चौधरी ने कहा और वो इम्पोर्टेंट है कि हम कहीं भी रहें, अगर इफ वी आर अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ तो उससे हमारी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है. व्हाट आई विश टू से प्रोफेसर शंकर चौधरी, सपोज आई एम हेडिंग ए वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट, इफ आई एम नॉट मेंटली साउंड तो हमारी फैमिली तो इफेक्ट होगी. हमारे स्टूडेंट, हमारे स्कॉलर, हमारे कलीग मॉर्निंग में आएंगे, स्टूडेंट विल एबल टू नो कि भाई क्या हो गया, आज पूछ तो रहा हूं सर गुड मॉर्निंग, वो गुस्से में नजर आ रहे हैं, आंख लाल पीला करते दिखा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं. तो हमारी लीडरशिप इफेक्ट होती है, हमारा जॉब इफेक्ट होता है, हमारा फैमिली इफेक्ट होता है, हमारा पर्सनालिटी, हर तरह से पूरा डिटेल इन्होंने वो चीज बताया कि कितना इंपॉर्टेंट इशू और एस्पेक्ट है. और सबसे बड़ी चीज है कि जो उन्होंने बताया कि आवर अवेयरनेस लेवल ऑन दिस एस्पेक्ट इज वेरी मिनिमल. हम आज मेंटल हेल्थ की शायद इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर इन द कोविड-19 फेज. लेकिन व्हेन ही सेज कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट ऑलवेज लिंक विद द कोविड, जो डाटा उन्होंने शो किया इट वाज नॉट ऑलवेज लिंक विद द कोविड. ये ठीक है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज इसका ज्यादा से ज्यादा आप सोचिए कि जरूरत आवश्यकता हो गई है. लेकिन थैंक्स टू दिस सिचुएशन दैट वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग on a very very important aspect. Or I just request Professor Shankar Chaudhary that this department will certainly take in a very big way this aspect of mental health of elderly population. You must not be listening. I think I was mute. Yeah. Anyway. So we all were affected or infected in one way or the other. So rather than telling so many things, I will just say if you can have any direct question with Professor Shankar Chaudhary. Yeah. Mani, I think Mani is ready with the question. Mani, you are. Good afternoon, sir. Mani, introduce yourself also. Sir, yes, sir. Sir, myself Mani Sagar, and I'm a faculty in Shahid Bhagat Singh Evening College, University, and I am doing PhD under Professor Rajesh supervision. So I Wonderful. Sir, I have a very small question, and it is not a question. It is what I am experiencing right now. And in your lecture, I've gone through your complete lecture. We have discussed many dimensions, many problems. But when we talk about the solution, sir, can you guide me some solution when there is a specific problem of my daughter? She always says that I don't have friend, I'm getting bored, what I need to do, how to treat a child. It is possibly not only my question, it might be many others' question, but how to tackle with the mental health of my 6-year-old girl. So can you suggest me something, sir? I would be very grateful to you. And it is a very serious issue because she's not going to school. There is online class. It is only a mockery of online classes are taking. Yes. And it is just to claim the fees only. So even in the classes, she could not concentrate. Sometimes she cannot concentrate in her studies. So I and my wife are very puzzled how to deal with in this particular situation. So thank you, sir. This is my question. Thank you. No, very important. Mani has raised a very important issue. Thank you. That is a very important question. And like you, there are many people who are facing this challenge. बहुत लोग हैं. See, at this age, socialization is so important, and socialization with peers is so important. That is completely missing. Children over the 1.5 years are growing up in an isolated atmosphere. Yes. How much can they talk with the parents? How much can they share with the parents? And parents themselves are also frustrated.
because they also are unable to interact with others. So this is a very very challenging situation. But two or three things. One is, you know, your child is a little is somewhat old to understand that there is this challenge called pandemic called COVID, which is some dreadful disease which is happening. That is why we are not being able to go out and meet our peers and friends and others. And this will give us hope. This will happen only for another 2 or 3 months. After that, the situation will be reviewed. It will be better. तो हो जाएगा. आप बच्चे अपने बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो. आप उनके साथ, इफ यू आर स्टेइंग अलोन, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है विद इन न्यूक्लियर फैमिलीज. मैंने बहुत देखा है ये न्यूक्लियर फैमिलीज में. जो जॉइंट फैमिलीज हैं, जो दादा दादी या नाना नानी या चाचा वगैरह के साथ रह रहे हैं, वहां पर ये सब प्रॉब्लम फिर भी थोड़ा कम है. न्यूक्लियर फैमिलीज में बहुत ज्यादा है. एंड स्पेशली इन फैमिलीज वेयर देयर इज ओनली वन चाइल्ड. Yes, Yes, sir. that's very important. ओनली वन चाइल्ड. अगर 2-3 बच्चे हैं तो वो तो आपस में लड़ झगड़ के खेल पेल के खत्म करते हैं. वन चाइल्ड होने से बहुत मुश्किल है. तो पेरेंट्स नीड टू स्पेंड more time in explaining why the situation is like this. And please, अगर आपके पास, अगर if you have friends or your grandparents, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप, मैं एक चीज कहूंगा क्योंकि मैंने कई लोगों को सजेस्ट किया एंड दे हैव ऑल सेड इट्स वेरी बेनिफिशियल. आप प्लीज एक वीडियो कॉल करा दीजिए विद दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, किसी के साथ भी एक एक बार वीडियो कॉल करा दीजिए विद द बच्चा. और उसके फ्रेंड के फादर को भी बोलिए. आप उसके जो क्लासमेट है उसके फादर को बोलिए प्लीज वीडियो कॉल करा दीजिए क्योंकि माय डॉटर वांट्स टू टॉक टू यू. दे विल आल्सो बी वेरी. आई हैव लॉट ऑफ पीपल हैव कम एंड टोल्ड मी जी आपका सजेशन फॉर वीडियो कॉल इज रियली वर्किंग वेल. बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज एक्टिंग एज थेरेपी फॉर नाना नानी एंड दादा दादी ऑल्सो. And Chacha Chachi also. It is acting as a therapy. Yeah. So try that. Try Yes, that. sure. There is no ready-made solution. Spend time. But मुझे पता है कि how much can you, जी क्योंकि बच्चों के questions भी ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स जी का इतना एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी. जी प्ले सम गेम्स, लूडो वगैरह, चेस वगैरह कुछ है तो थोड़ा गेम्स करिए. बट एक जी वीडियो कॉल जरूर करवाइए वंस इन अ जी वाइल. जो जी भी अवेलेबल है, आपके जी फ्रेंड की भी अवेलेबल है, उनसे आपकी वाइफ के फ्रेंड भी अवेलेबल है, वो कराइए. जी दैट जी. इज रियली अ वेरी थेरेप्यूटिक थिंग. ओके, Thank you थैंक यू. so much. एनीबॉडी Very, एल्स? Thank you so. very important issue, sir. Money told when he was telling, I was also understanding that I have also a child of 7 years in my home, and what अच्छा. Mani said, the same true. A single child of my हाँ daughter, and he is also facing हाँ the same. So at night, एग्जैक्टली. Money, what Professor Chaudhary said, for half an hour or let's say sometimes 1 hour, we all play, the family members in हाँ. the family, Ludo, online Ludo with them. And always we make the point that he is the winner. We create such a situation, so he हाँ. becomes the winner पॉजिटिव and he पॉजिटिव. become यस. very happy. Then he used to show, हाँ, मेरा इतना पॉजिटिव. point हुआ, उसका इतना point हुआ, इसका इतना. So This what is the thing that, positive emotional support. yes, positive Positive emotional emotional support. support that, Support. and he was very right. Where there is a single child, he cannot play, he cannot just make angry, हाँ he cannot just be annoyed with sibling or whatever. Such situation is there. Well explained, sir. Thank you. Yeah. Thank you Anybody so much, else? sir. Yeah. Ma- Anybody जी else to have something? चलो, इफ नोबडी एल्स हैज तो डॉक्टर राजेश, हम हाँ. अभी से प्लान करते हैं कि 10th अक्टूबर को हम डिपार्टमेंट के साथ मिलके वी विल ऑब्जर्व नॉट ओनली डे बट अ मेंटल हेल्थ वीक. क्योंकि कोविड तब भी शायद रहेगा थोड़ा रहेगा बहुत. रहेगा. वी विल और या हाँ वी and we will collaborate with WHO. I will talk to WHO and others and also ministry and see what kind of support they can yes, provide. So let us certainly. plan. Yeah, we will be open
And one thing more coming to my mind, Dr. Chaudhary, that some of us like Parinita, Sia, and others are also engaged currently in giving student-based counseling services. So, if during this time also, wherever they are within the all Corona protocol of the city, we have to abide by that. How we can even during this time make at least 2-3 calls every day to nearby, maybe elderly population, maybe LGBT, maybe some alone. I just remember when you were discussing, I live in Rohini area. One of my friends said that there was one person who retired from CVI. His entire family is out of city. So what happens sometimes, that he has money is not the problem, but there is no any person to purchase medicine for them. So sometimes one of my friend called, why don't Yes, we sir. make by rotation, that in a week you help, in another week I help, in another week I help. And we had made a rotation of such kind of a thing. And he just a 68, 69 year, the old to provide them support, and they are unable to go outside and purchase. There may be lot many in the area. So within the protocol, how we can just take care, or what Professor Chaudhary said, that suppose for half an hour, maybe in a day may not be possible, 2 days, 3 days. If you talk for half an hour for such a person, कैसे हैं, क्या है, बच्चे कैसे हैं, कैसे दिन में engage है, Very what you therapy. do, yeah, that also That will become, act as a therapy. yeah, That will act as a therapy. act as a therapy. Or sometimes you see, sometimes you share some pleasantry with him, with her, with the family. Such kind of a innovative things can be experimented during this time also. So you are very right, Professor Chaudhary, that certainly we will have a very serious way on 10th October, maybe for 2-3 days, maybe for a week, something can be celebrated in the university system on the mental health day. And something can be done in a very serious way. And we will involve you in a big way, that how to project the program, how to contact WHO, Yes, how to contact ministry, what to do, what the I am next with you. program. Yeah, so such things can be certainly done. I think it was such a encouraging session that it seems that whole day we continuously talk. But if you do not have anybody has to share, then we will just request Parinita to just provide vote of thanks. But before that, I do not know if somebody wish to say, share something. It's not a question. You can share some example. You can cite something like Mani has shared. So this is the time. Sia Bihari, if you can just reach, you are in Bihar. And once I talk to you, that you talk to some youth person, you talk to some elderly population in the rural area you are living. You are residing in Delhi currently. You see what are the differences about the disease, what are the differences on the thinking, on the mental skill, what Professor Shankar Chaudhary said. You can see the difference, you can document the difference, and you can cite the example on such issues. Yeah. Sia or anybody wish to say something? Sia? हाँ बोलो. Yes, sir. I'm so sorry, sir. I'm so sorry, sir. I'm facing network problem here. I know. तुम अपना वीडियो ऑफ करके कुछ कह सकते हो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है, सर? हाँ, आ रही है. Yes. Yes, sir. सर, आज काफी कुछ जानने को मिला है यहाँ से. और एट द सेम टाइम सर, जैसा कि मैंने आपसे भी बात किया था लास्ट टाइम, जब आपने मुझे मोटिवेट किया था कि आप लोगों से बात करो वहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ गए हो, आपको एक नई तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली है. तो सर यहाँ पे मैंने काफ़ी मतलब मेंटल हेल्थ इशू से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं, या हमारे आसपास जो लोग फेस कर रहे हैं, कि सर ने जो अभी बताया कि काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं
यहाँ पे सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन है, मेरी दादी वहाँ पे हैं और कोई नहीं रहता उनके साथ। और अगर उन्हें किसी तरीके की कोई बीमारी हो रही है, कोई कोविड हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, तो पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाते हैं एक एक चार दीवारी में, और उनको कोई मतलब हेल्प करने वाला नहीं है। तो कई सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें वो सिर्फ मतलब टेंशन के कारण, हाइपर टेंशन के कारण मतलब उनका ये हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है या समथिंग ये हुए हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम विलेज एरियाज में ज़्यादा देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ बिग सिटी में। एलिमेंट्री स्कूल्स जो हैं यहाँ पे, आंगनबाड़ी हैं, ये सब पिछले 1 साल या 1.5 साल से बिल्कुल ओपन ही नहीं हुए हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इस मतलब चाइल्ड वर्कर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों को सस्ते, काफ़ी कम 50 रुपये और 100 रुपये में लोग मतलब छोटे बच्चों से काम कराना, और इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करने के कारण यहाँ पे मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि हम जैसे यूथ या फिर जो ट्रेंड काउंसलर हैं उनका क्या रोल है, और वो कैसे इस तरीके की कम्युनिटी से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे अगर कोई दिल्ली से आता है या बाहर किसी भी जगह से आता है तो उन्हें लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लोग उनसे डरते हैं कि आप बाहर से आए हैं, कम से कम 20 दिनों तक आपका मतलब किसी के साथ भी आप मिल नहीं सकते, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, काफ़ी लोगों के अंदर डर है इन चीज़ों का। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब हम इस तरीके के पॉपुलेशन से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी दिक्कत है, जैसे अभी मैं फेस कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कैसे जुड़ें लोगों से, मैं ये जानना चाहता हूँ शंकर सर आपसे और राजेश सर आपसे। थैंक यू। हेलो। आई होप सर मेरी आवाज़ आई होगी। हाँ, आवाज आई 100% तो नहीं, बट आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। ये देखिए, अगर अभी आप समझे कि अ, हमें कोई स्पेशल कोविड काउंसलर चाहिए, तो वो बात मेरे को लगता है जमती नहीं है। हमें काउंसलर चाहिए। अगर आप काउंसलिंग कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग पता है, देन यू कैन बी कोविड काउंसलर, यू कैन बी HIV काउंसलर, यू कैन बी इन स्कूल काउंसलर, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन काउंसलर, यू कैन बी काउंसलर। बट एक चीज काउंसलर को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ही और शी शुड नो अबाउट द about the issue that you're counseling. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप HIV में काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको HIV की नॉलेज होनी जरूरी है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टेक्निक्स तो वही है, you go establish rapport, sit down, listen to them, talk to them, and then empathize with them. टेक्निक्स तो वो है, टेक्निक्स में कोई अलग चीज नहीं है। बट एज अ पर्सन, एज अ काउंसलर, एम आई नॉलेजेबल अबाउट काउंसलिंग? किसी ने अगर मुझे पूछा कि कोविशील्ड बेटर है या कोवैक्सीन बेटर है, एम आई नॉलेजेबल? डू आई नो? कैन आई गिव यू द फैक्ट्स? कैन आई टेल यू दैट? ये हमें, इसके लिए हमें थोड़ा एविडेंस बेस्ड रिसर्च पढ़ने की जरूरत है। जैसे कि आपको सबको मालूम है, कोवैक्सीन का 3rd फेज ट्रायल का डेटा अभी आ गया है, एंड कोवैक्सीन का 3rd फेज डेटा हैज ऑलरेडी शोन दैट इट इज 78% एफिकेसी नॉट इफेक्टिव, बट एफिकेसी इसका 78% है, विच इज रियली अ वेरी गुड थिंग। तो कोवैक्सीन इज आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, भाई आपके पास चॉइस है, एविडेंस बेस्ड डेटा है, एविडेंस बेस्ड डेटा बता रही है कि कोवैक्सीन इज 78% एफिकेशियस, एंड उसी तरह कोवैक्सीन का जो दैट इज शोइंग 72%। तो ज्यादा अंतर नहीं है, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास चॉइस है तो आप लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। और ये इसके लिए आपको नॉलेज की थोड़ी जरूरत है, एविडेंस की बेस की बहुत जरूरत है। तो फिर अभी जैसे सुबह, बिकॉज आई एम ऑनलाइन काउंसलिंग ऑल्सो, अभी मेरे पास सुबह एक फोन आया फ्रॉम यंग बॉय who got Covishield yesterday and he has 101 टेम्परेचर। तो मैंने उससे बोला कि भाई आपको बताया था कि जब वैक्सीनेशन लगाया था कि भाई टेम्परेचर आ सकता है एंड यू मस्ट टेक पैरासिटामोल, आपको he said नहीं, मेरे को नहीं बताया। अब देखिए ना, जो हमारा हेल्थ कम्युनिकेशन है, बिकॉज
it is also not up to the mark, but because of so much of stress मेरे ख्याल ये बताते नहीं है. कम से कम वैक्सीनेशन सेंटर पे एक पोस्टर ही लगा दीजिए जाके लोग पढ़ सकें कि there are people who will get temperature and there are people who will get 99.9, there are people who will get 100, there are people who will get 101. If such a situation happens, please take paracetamol. Avoid taking Crocin, but take paracetamol. Paracetamol is effective. आप लिख भी दीजिए paracetamol 300 500 mg ले लीजिए. और जिसको बुखार नहीं है वो मत ले. तो ये कम्युनिकेशन का गैप है. दिस इज अ बट द काउंसलर शुड बी नॉलेजेबल कि ये होना चाहिए. तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है. आप डोर टू डोर काउंसलिंग की तो I would not encourage, because in this COVID situation it's not advisable to go to door. हाँ, अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर कनेक्टिविटी है तो या वेरी गुड. देन यू हैव टू फॉलो द काउंसलिंग प्रोसेस. क्या है मतलब जैसे गैदर मैं हमेशा यूज करता हूँ काउंसलिंग में. गैदर, G for greet the person, H for A for ask what are the problem. तो ये गैदर टेक्निक यूज करके यू कैन ऑलवेज यूज काउंसलिंग. बट द क्वेश्चन इज यू हैव टू बी little up to date with the knowledge, with the information. Okay. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank so you. much. Well informed, sir. Very good. Anybody else to ask anything? Yeah. Anyway, Parnita, you are here. Yes, sir. Now you can just provide the vote of thanks. Yes, sir. Sir, on behalf of the department, thank you so much, Professor Shankar, sir. I think you've really touched upon, on such an area which is still considered to be a social stigma, and we need to come out of it. And just to, sir, share something personally, what I feel, and throughout your presentation, and also I resonate with, what Professor Rajesh sir said, that there were so many statistics which were completely unknown to us and not related to COVID. So I think accepting that mental health is a part of an overall health becomes primary in order to start dealing with those situations. And we are also part of the online counseling panel. So there are 3 of us from the department. And so during those experiences, I feel that sometimes it's really to do with listening to the person that really solves more than half of the Yes, issues. you are right. And Yes. sir, like a small demarcation, between having empathetic skills and sympathetic skills. So I really feel that the having empathy towards the person can really solve the problem, and the other half gets solved by just listening actively. So I think each Absolutely, absolutely. yes, sir. So and sir, also before counseling anybody else, I think it's very very important to start from our own house. There are Yes. so many issues. Absolutely. We have family members we've spoken Absolutely. to, we've not spoken to them since long, and they are also not open, when it comes to sharing their problems. So how do you develop those, skills is very very important so that they feel comfortable with you and you are in a better position to help them. Very true, very true. And so we will work together and make sure that we have some sort of program organized on 10th October, as you've suggested, and also Professor Rajesh sir. And to all the participants here, we would be sharing the presentation very soon. Yeah. And thank you so much, sir. We hope to have you discuss more such issues in the coming time. Thank you so much. Yeah. Thank you, Parinita. Yeah. Thank you for helping with the PowerPoint presentation, and thank you for summing it up so beautifully. So well done. Please, and thank you everyone for being with me. I enjoyed the session also. Please remember, there is no health without mental health. Thank you very much. Thank you. Thank Thanks you. a Thank you lot. so much. And sir, thank you, Professor. Professor Rajesh sir, for actually, recognizing that how important Professor Shankar sir would be, to be part of this session. Yeah, yeah, certainly. And Professor sir, lastly, but Rameshwar, thank you to him for the, excellent tech support. Oh, Professor Rajesh is a pioneer. He always has this
foresight. He always goes before time. Thank you, sir. Thank Thank you you. all for giving a very valuable time on a very important day. Thank you, Parnita Rameshwar, Professor Shankar Chaudhary, and you all, sir. Thank you. Good day. Bye. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye. 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 Bye.